नमस्कार दोस्तों, good morning. From today we are starting new topic, protein and amino acids. Second topic of the same unit for paper 301. The reference book for this presentation used is Biochemistry by Satyanarayan, which is a very popular book among the pharmacy students, and very good content is given in this book. In the slide, the protein speaks. The protein gives introduction themselves. Protein अपना खुद का introduction दे रहे. We are the basic structure and function of life. We are composed of 20 amino acids, the building blocks. We organize into primary, secondary, tertiary and quaternary structure, and we are classified as simple, conjugate and derived protein. The whole presentations and coming presentation is on this theme. In this presentation, we learn one by one thing. First, have you seen ever the protein? How they looks like? So using the graphical model system presentation, you can see the proteins look like these globes. And in another model you are watching in a ribbon model. So they are the space filled model. First one, the proteins are normally look like this one. They are the basic structure of life. So here the cell is shown. Most of the organelles in the cell composed of protein or contain protein. The cell wall having amino acid chain. The cell membrane is having the lipoprotein, then transport protein, receptor protein. Then after cytoplasm contain all the enzymes, they are the protein. Ribosome organelle is there, it is having the riboprotein. Nuclear membrane having the protein. DNA have the histone, that is a histone protein. And all enzymes are also protein. So protein is everywhere in the life. Protein are some structural portion. They are found in tissues. They in form of the muscular. They provide the muscular strength. Collagen. It is a fibrous protein. We are getting this protein through our diet. We have to take the protein regular basis. Why? Because protein cannot be stored just like carbohydrate. ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यानी इसलिए हमको डेली जो प्रोटीन है वो खाना पड़ेगा. फूड में, डाइट में होना चाहिए. आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे या एक्सेस लेंगे तो बॉडी में स्टोर होगा या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाएगा. पर प्रोटीन का जो डेली रेकमेंडेड डोज है वो आपको लेना ही होगा. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिक शुगर्स होती है, यहाँ पे एमिनो एसिड्स होते हैं. देयर इज अ पॉलीसैकेराइड, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड है. पॉलीपेप्टाइड चेन यू कैन सी देयर आर द स्मॉल कलरफुल बिट्स. दिस कलरफुल बिट्स क्या है मतलब? यहाँ कलरफुल बिट्स है, दे आर द डिफरेंट एमिनो एसिड. There are 20 different amino acids which are known as the standard amino acid and which have the which are coded by the genetic codes. तो ये 20 amino acid जो है वो जो 20 amino acid वो genetic code होने से mRNA में से बनेंगे और mRNA से वो ट्रांसक्राइब होके, ट्रांसलेशन होके प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे. देयर आर मोर देन 300 प्रोटीन्स, but they all are not standard amino acids.
द स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स आर ओनली 20, वो हम आगे देखेंगे. So these 20 amino acids having the sense in a genetic code, and then after they join together and produce a chain, and this chain is known as the polypeptide. This polypeptide chain in which the two amino acids connected by peptide bond. Here there is a peptide bond. कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. So glycosidic bond is there, peptide bond is here between two amino acid. So there is a disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide like this one. Here we can say dipeptide, tripeptide. Okay, वहाँ पे अलग अलग शुगर थी, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, आल्डोस, कीटोस. यहाँ पर 20 अमीनो एसिड्स है, और 20 एमिनो एसिड में पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, ओके, उस तरह के अलग अलग 20 एमिनो एसिड्स है. उसका क्लासिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे. तो ये रहे 20 अमीनो एसिड. व्हाट इज द कॉमन थिंग इन अमीनो एसिड? सो देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप विच आर कॉमन इन अमीनो एसिड. कोई भी एमिनो एसिड आप लीजिए, उसमें आपको एक COOH ग्रुप मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH. तो ये COOH एसिडिक ग्रुप है, और ये अमाइनो ग्रुप है, NH3+ and COO-. So कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमोक्सिलिक ग्रुप, 1 carbon and 1 hydrogen. So this is the most common format for any amino acid. How can you define the amino acid? Amino acid are the small organic molecules which contain at least 1 carboxylic group and 1 amino group. तो जिसके पास एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो मॉलिक्यूल एमिनो एसिड होंगे. दैट्स वाई देर आर 300 to 400 एमिनो एसिड. तो ऐसे कंपोजिशन वाले 300 से 400 एमिनो एसिड है. बट आउट ऑफ दिस वन हाउ मेनी आर स्टैंडर्ड? उसमें से कितने के जेनेटिक कोड्स है और कितने की इंफॉर्मेशन DNA से, mRNA से होके प्रोटीन बनने में हेल्प होती है. सो ओनली 20 दे आर दे. So this 20 amino acid you can see. तो ये जो 20 amino acids है, उसके सिर्फ आप नाम देख लीजिए: ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, फिनाइलएलेनाइन, ट्रिप्टोफान, प्रोलाइन, सेराइन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पाराजीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन दे आर डिफरेंट. तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप रहेगा, और उसमें जो 4th कार्बन है, 4th पोजीशन, वहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे. दिस फंक्शनल ग्रुप आर एलिफेटिक, एरोमेटिक, देन पोलर, नॉन मोलर, एसिडिक चार्ज, बेसिक चार्ज, न्यूट्रल चार्ज और विदाउट चार्ज. सब तरह के इसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो हम अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन में सीखेंगे. फिर डेफिनेशन में लास्ट था वर्ड क्लासिफाइड एज सिंपल कॉन्जुगेट एंड डिराइव्ड प्रोटीन. सो जो सबसे पहला प्रोटीन बनता है वो सिंपल एक जैसे माला होती है, बराबर, बीड्स जो एक धागे से परे हुए थे, वैसे ही एक सिंपल माला होती है, फर्स्ट प्राइमरी. सो दिस वन इज नोन एज द प्राइमरी प्रोटीन. ये क्या है? प्राइमरी प्रोटीन. प्राइमरी प्रोटीन इज व्हाट? अ सिंपल चेन ऑफ एमिनो एसिड. जब ये चेन के ऊपर चार्जेस होते हैं,
स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस। तो उसके कारण क्या होता है, दिस चेन इज स्टार्ट टू बेंड, ये बेंड हो जाएगा। तो जो बेंडिंग होगा वो दो तरह के होंगे, एक स्प्रिंग जैसे होगा, हेलिकल वन। सो द स्प्रिंग इज नॉन एज द अल्फा हेलिक्स, एंड दूसरा जो फॉर्मेट है वो जैसे अपने जो कर्टेंस होते हैं, तो कर्टेंस में जो जिगजैग पैटर्न बनती है ना, उसको बोलते थे बीटा प्लीटेड शीट। तो जो कर्टेंस में जिगजैग होती है पैटर्न्स, वैसे ही ये जिगजैग होगा, तो उसको बीटा प्लीटेड, दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने अंदर ही इंटरवोवन हो जाएगा, देन इट इज नॉन एज द टर्सरी स्ट्रक्चर। और लास्ट में एक एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग एमिनो एसिड एक दूसरे पर इंटरवोवन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनिक पोर्शन, कोई मेटल आयन, कोई फंक्शनल ग्रुप अलग से जॉइंट हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम बन जाएगा, देन इट इज नॉन एज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। So there are the four structural level of protein: primary, secondary, tertiary and quaternary. Is it? Now we see how this word comes. The name protein. The protein word is come from Greek word proteos. और proteos जो शब्द है उसका मीनिंग था प्रीएमिनेंट और फर्स्ट, जिसका लिविंग सिस्टम में सबसे पहले स्थान है। तो जब प्रोटीन नाम नहीं था, उससे पहले वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि कुछ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड इज फाउंड एवरीवेयर, हर एक सेल में, हर जगह पे नाइट्रोजन रिच कंपाउंड मिलता है और वो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको प्रोटियोस से प्रोटीन बनाने का जो क्रेडिट है वो दो साइंटिस्ट के नाम पे। फर्स्ट suggested 1838 by Swedish chemist Berzelius to Dutch chemist Mulder. बर्जेलियस ने मुल्डर को बताया कि इसका नाम प्रोटियोस रखना चाहिए या प्रोटीन रखना चाहिए। ओके, एंड दिस साइंटिस्ट मुल्डर, who refer it to complex organic nitrogenous substance found in the cell of the living cell, should be called प्रोटीन। तो जो सेल में नाइट्रोजन रिच कंपोनेंट मिलता है उसको हम प्रोटीन बोलेंगे। तो बर्जेलियस और मुल्डर दोनों ने इसको नाम दे दिया प्रोटीन। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट इंट्रासेल्युलर मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो पॉलीमर है तो उसको बोलेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स, एंड कंस्टिट्यूट ओवर हाफ ऑफ द ड्राई वेट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो पूरा जो सेल है उसका 50% वेट प्रोटीन से बनता था। प्रोटीन के क्या क्या यूजेस है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन इन आर्किटेक्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग मैटर्स। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जितनी भी बॉडी है, एनिमल्स की ले लो, प्लांट्स के ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ले लो, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर पार्ट में, हर ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गन्स में, हर टिश्यूज़ में कहीं ना कहीं प्रोटीन है। सो इट हैविंग द फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग मैटर। तो फंक्शनिंग के लिए लिविंग मैटर में हर जगह पे प्रोटीन आवश्यक है। Some proteins serve as the important structural elements of the body hair, wool, nail, horns, etc. Collagen, important constituent of the connective tissue. तो हमारे जो सिर पे बाल है वो भी केराटिन है। सीप और गोट पे जो वूल मटेरियल है दैट इज अ प्रोटीन। हमारे बोन्स और मसल्स में कोलाजन होता है, दैट कोलाजन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। हमारे नेल्स में भी केराटिन प्रोटीन है। सो दिस वे द प्रोटीन इज इट हैविंग द स्ट्रक्चरल रोल। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे आपने फ्लैजेला पढ़ा,
तो फ्लैजेला किस में से बना है? फ्लैजेला के अंदर प्रोटीन कौन सा है? फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेलिन इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन्स यूज होते हैं। प्रोटीन का दूसरा यूज क्या है? दे आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट रिबोजाइम। जितने भी एंजाइम्स है, एक रिबोजाइम को छोड़ दिए, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हर एंजाइम प्रोटीन से ही बना है, रिबोजाइम के अलावा। हार्मोन्स, तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है उसमें से आधे से कम, आधे से ज़्यादा नहीं पर आधे से कम हार्मोन प्रोटीन है। दिस एंजाइम प्रोटीन आर ऑक्सीजन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेशन है, बॉडी में जो भी ट्रांसफ़र करना है, तो वो मॉलिक्यूल जो होंगे FAD, FMN, NAD, वो सब प्रोटीन के अंदर फिक्स होते एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर, कोएंजाइम, एंड दे कैरी द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखा है कि प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनॉन, यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A बाई 3, ये सारे प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दे आर द एसेंशियल टू सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। द प्रोटीन विथ कैटालाइटिक एक्टिविटी एंजाइम्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर determining the phenotype of properties of the cell in the particular environment। तो जितने एंजाइम्स है वो एंजाइम्स काम करेंगे हमारी बॉडी में, पूरी मेटाबॉलिज्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी में जो भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, नया डेवलप करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो सब कुछ जो दिखता है वो मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन न्यू सेल सिंथेसिस से होगा, डिग्रेडेशन से होगा। सो मेटाबॉलिज्म इज सोलेली डिपेंड ऑन एंजाइम एंड एंजाइम आर प्रोटीन। तो बॉडी में जितना कुछ भी हो रहा है वो प्रोटीन के हिसाब से हो रहा है। सम प्रोटीन पार्टिसिपेट इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दे आर एसोसिएटेड विद जीन एंड हेरिडिटरी फैक्टर। तो हम जितना भी हाथ हिलाते चलते, जो स्पर्म्स है उसका मूवमेंट है, एक फिश जो तैरती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजेलेटेड मोटिलिटी करता है, तो हर मूवमेंट के लिए ATP चाहिए। तो ATP से उसमें एनर्जी आएगी, पर जो एनर्जी कैरी कौन करेगा? फ्लैजेला या स्पर्म है, वो उसका जो सिलिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वैसे ही हमारी मसल्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सारे प्रोटीन है, स्ट्रेचेबल प्रोटीन। तो वो ATP लेके स्ट्रेच हो जाएंगे और हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। सो फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, फॉर वॉकिंग, फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट, ATP give the energy to this protein, and this protein are involved in this process, contraction, relaxation, etc. Then proteins are involved in construction of chromosomes. Total heredity material of the cell or genotype dictated which type of protein the cell can produce। तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन है वो बनता कैसे है? प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन mRNA रखता है, और mRNA वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कॉपी करेगा? DNA से। और DNA हर एक सेल में हेरिडिटी मटेरियल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। सो DNA इज टेकन अप फ्रॉम प्रीवियस सेल। जैसे सेल डिवीज़न होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम्स डबल होंगे और इक्वली शेयर होंगे। सो फॉर एनी सेल, फॉर एनी इंडिविजुअल, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज लाइफ इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम जैसे जैसे mRNA बनेगा और उसी तरफ से वो प्रोटीन बनेगा।
यानी एक पूरा जीवन, एक पूरी बॉडी कैसे दिखेंगी, कैसे चलेगी, उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे बॉडी के फंक्शन, सेल के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब प्रोटीन ड्रिवन है। इमेज में आप देख सकते हो तरह तरह के बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स है सेल मेम्ब्रेन पे, वो भी प्रोटीन है। सिग्नलिंग में प्रोटीन है। कुछ भी चीज़ सेल के अंदर यूं आ जा नहीं सकती, दैट रिक्वायर सम परमिशंस, एंड दिस परमिएस प्रोटीन कैन ब्रिंग द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड and outside to inside. Similarly, in our body, the hormone releases. So these hormones have the receptor capacity, and they allow the hormones to act or not on the organism. हमारे बॉडी में कितने एंजाइम्स हो सकते हैं? तो एक बैक्टीरिया में देख ले, Escherichia coli is estimated to contain 5,000 different types of compound, which includes some 3,000 different kind of protein and 1,000 nucleic acid. तो जो E. coli